اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت ریاست گجرات کے سورت علاقے سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ کٹھور کے ایک عالم دین، گجرات میں ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے کٹھور، وہاں کے ایک عالم دین کو نپور شرما سمیت دیگر بھگوا بریگیڈ کے لیڈروں کے قتل کی سازش کے تحت اس عالم دین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گجرات کرائم برانچ نے یہ کارروائی کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی ایم ایل اے ٹی راجا، جو بڑا شریف انسان ہے، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے۔ سریش چوہان، یہ تو مہا شریف ہے، اس کے زبان سے تو ٹوائلٹ کے علاوہ، گندگی کے علاوہ، زہر کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو سریش چوہان اور ایسے کچھ بی جے پی کے لیڈر ہیں، ان کو قتل کرنے کی سازش کا الزام ہے اس عالم دین پر، جن کا نام ابو بکر، سہیل ابو بکر، غالباً مولانا سہیل ابو بکر تیمول بتایا جا رہا ہے، جن کی 27 سال کی عمر بتائی جا رہی ہے، جو ایک دھاگا فیکٹری میں مینیجر کے طور پر کام کرتے تھے اور مسلم بچوں کو اسلامیات کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وہ اصل میں نندبار مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے سورت کے کٹھور گاؤں میں رہ رہے تھے جہاں سے ان کی گرفتاری کی گئی۔ پولیس افسر کے دعووں کے مطابق وہ پاکستان اور نیپال کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہندو سناتن سنگھ کے قومی صدر اپدیش رانا کو مبینہ طور پر مارنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی سپاری دینے اور پاکستان سے ہتھیار خریدنے کی سازش کر رہے تھے۔ ملزم کو 10 دنوں کے لیے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سورت کا جو معاملہ بی جے پی نے کیا ہے کہ کس طریقے سے بالکل گھٹیا حرکت کر کے بی جے پی نے کانگریس کے امیدوار کو سائیڈ میں کر دیا اور بن ورود اپنے امیدوار کو جتا دیا اور سیکولرازم، جمہوریت کا قتل کر دیا۔ ان تمام چیزوں کو چھپانے کے لیے اور ملک کا دھیان ہٹانے کے لیے باقاعدہ یہ کارروائی کی گئی ہے، ایسا لوگ سوشل میڈیا پر بھی کمنٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا چیز سامنے آتی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، لوک سبھا الیکشن تیسرا مرحلہ کل 94 سیٹوں پر پولنگ ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کل جو پولنگ ہوئی ہے، ووٹنگ ہوئی ہے، اس میں امیت شاہ، دگ وجے سنگھ، ڈمپل یادو، ادھیر رنجن چودھری، یوسف پٹھان اور مولانا بدر الدین اجمل سمیت کئی اہم بڑے بڑے لیڈران کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں بند ہو گیا ہے۔ بس دعا کرو کہ ای وی ایم سلامت رہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنا لمبا پیریڈ دیا جا رہا ہے رزلٹ آنے کے لیے، اس میں بی جے پی کچھ نہ کچھ بڑا گیم کرنے والی ہے۔
बस दुआ करो कि अल्लाह ताला ईवीएम की भी हिफाजत करे और मुल्क की भी हिफाजत करे, और वो लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं उन लोगों से भी मुल्क की हिफाजत करे। वो लोग जो सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की घटिया नीच किस्म की राजनीति कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे नीच लोगों से इस मुल्क की हिफाजत करे। ऐसा आप तमाम से बाकायदा अपील की जा रही है कि दुआएं करते रहे, प्रार्थना करते रहें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, आप जानते हैं कि बाकायदा बॉर्डर के बहुत बड़े हिस्से पर चाइना कब्जा कर चुका है और बीजेपी और 56 इंच का सीना कुछ भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल वजीर खारिजा एस जयशंकर ने गुज़िश्ता कल इतवार को ओडिशा में यह बयान दिया कि पीओके को, यानी जो हमारे बॉर्डर का पूरा इलाका है, पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। ओडिशा के कटक में जयशंकर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही है। हालांकि एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह कहा कि पीओके पर ताकत के जोर पर कब्जा करने की जरूरत नहीं, लोग खुद भारत में शामिल होना चाहेंगे। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन चाइना बहुत बड़े हिस्से पर मुल्क में घुस चुका है और रखेल गोदी मीडिया खबरों को छुपा रही है और बीजेपी की हिम्मत नहीं है और 56 इंच की सेना की हिम्मत नहीं है कि चाइना का चाबी वो जबान पर लाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, आप जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एकदम गटर लेवल की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और आज तक कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं आया जिसने इस वज़ीर आज़म की कुर्सी को इतना जलील और रुस्वा किया, और आज तक कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं आया जिसने डायरेक्ट हिंदू मुसलमानों में नफरती भाषण किए हो, हिंदू मुसलमानों को तोड़ दें और मुल्क को बांटने की बात की हो। लेकिन यह शख्स इतना जलील काम कर रहा है कि पूरी दुनिया थूक रही है। अभी खबरें आ रही है कि मुसलमानों और कांग्रेस पर बीजेपी ने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो इंतहाई घटिया है। इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर बीजेपी की इस वीडियो को लेकर शिकायत की गई है। इसमें बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालविया, बीजेपी के रियासती सदर बीवाई और भी उनके तमाम की शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस का इल्जाम है कि मॉडल ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी, SC/ST कम्युनिटी के अरकान में दुश्मनी, नफरत और बदखाई के जज्बात पर पैदा करने की नीयत से ये वीडियो बनाई गई है। कांग्रेस ने इससे पहले इलेक्शन कमीशन में बीजेपी के खिलाफ तकरीबन 20 शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन कमीशन ने किसी के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की। एक्चुअल में मुल्क ये भी देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल जलील और रुस्वा किस्म की हरकतें कर रहा है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी पर, खैर इलेक्शन कमीशन की ताकत भी नहीं है बीजेपी पर या मोदी पर या अमित शाह पर कार्रवाई करने की, इसलिए एक भी शिकायत पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई सीधे अंदाज में नहीं की है। आइए नाज़रीन, जिस रेपिस्ट का प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, कर्नाटक का वो रेपिस्ट जिसने 2,500 से 3,000 महिलाओं का रेप किया, वीडियो बनाया, उनको ब्लैकमेल किया, जी हाँ, और नरेंद्र जी मोदी जिनके प्रचार के लिए गए, अब वो शख्स मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया, आप समझ सकते हैं। और कमाल की बात यह भी है कि अब तक तमाम बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े रेपिस्ट हैं उनके पीछे बीजेपी खड़ी हुई नजर आई, उनको बचाती हुई नजर आई, बल्कि बीजेपी ने तो एकदम घटिया और नीच हरकत गुजरात में की कि बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों और कातिलों को बाकायदा आजाद करवाया, रिहा करवाया। अब ये कर्नाटक का मामला सामने जो आया है, इसने बीजेपी को जलील कर दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करने को तैयार नहीं है। खैर, कर्नाटक के मामले में मजीद 3 पीड़ित महिलाएं सामने आई है और उन्होंने SIT को शिकायत की है। नाज़रीन, आम आदमी पार्टी के दबंग कदआवर बोलकार नेता संजय सिंह का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी वॉशिंग मशीन में करप्शन के दाग धब्बे धुल रहे हैं, बड़े बड़े करप्टेड लीडर बीजेपी में जा रहे हैं और मोदी वॉशिंग मशीन में अपने दाग धब्बे धुल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे करप्टेड बदउन्वान पार्टी करार दिया है
اور संजय सिंह ने खुलकर ये कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषण में अशोक चौहान से कहा था कि उन्होंने कारगिल की बेवाओं के फ्लैट्स के पैसे खाए, और वजीर आजम ने खुद कहा था कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का आबपाशी घोटाला किया। खुद वजीर आजम ने प्रफुल्ल पटेल के लिए कहा था कि प्रफुल्ल पटेल के इकबाल मिर्ची से ताल्लुकात है, जो दाऊद इब्राहिम का आदमी है। वजीर आजम ने ऐसे तमाम लोगों को जिन पर खुद वजीर आजम ने इल्जाम लगाया था, उनको तमाम को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, और जैसे ही वो मोदी के साथ जब ये लोग आ गए हैं तो उनके सारे दाग धब्बे धुल गए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले अजमेर की मोहम्मदी मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना माहिर को 3 नकाब पोशों ने बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर कत्ल कर दिया था। हालांकि उनके बारे में ये भी खबरें आ रही थी कि मौलाना साहब ने रमज़ान के मौके पर सूद और ब्याज खाने वालों के खिलाफ बयान किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। यानी इमाम मोहल्ले में अगर कोई हराम का धंधा करने वाला है, ब्याज का धंधा करने वाला है, कोई नीच है, कोई गुंडा है, इमाम बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि गुंडों को बुरा लग जाता है। नीच लोगों के खिलाफ बयान करे इमाम तो नीच लोगों को बुरा लग जाता है। अगर सूदखोर और ब्याजखोरों के खिलाफ बयान करे तो उनको बुरा लग जाता है। आखिर इस इमाम को मार दिया गया। मगर खैर, अभी खबरें आ रही है कि मकतूल इमाम मोहम्मद माहिर के घर वालों से हजरत मौलाना मुईन मियां ने मुलाकात की। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा और रजा एकेडमी ने 1 लाख रुपए की इमदाद भी उनके अहले खाना को दी है, और हुकूमत से अपील की है कि ऐसे वाक़यात समाज में रूनुमा न हो, इसकी गुहार लगाई और इस दर्दनाक वाक़े की बाकायदा पुरजोर अंदाज में मजम्मत की। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में वकला एडवोकेट्स के लिए एक ईद मिलन का मुनफरिद अंदाज में एक प्रोग्राम रखा गया, लेकिन उस प्रोग्राम में जो वकला शरीक हुए, उन्होंने जब अपनी बातें रखी तो चौंका देने वाली बातें उन्होंने कही। उन वकीलों ने कहा कि इस वक्त हमारा प्यारा देश भारत इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। शहर के वकला के लिए इनोसेंस नेटवर्क ऑफ इंडिया की जानिब से ईद मिलन का एक पुरतकल्लुफ प्रोग्राम इस्लाम जमखाना मुंबई में मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर के नामवर वकला ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील यूसुफ मछाना ने इस मौके पर सदारती खुतबा देते हुए कहा कि ईद मिलन का ये प्रोग्राम हमें रमज़ान और कुरान की याद दिलाता है। उन्होंने फिर बहुत सारी अहम बातें बताई, और फिर इस मौके पर बाकायदा वहां पर शरीक वकला ने साफ तौर से ये कहा कि मुल्क में इस्लामोफोबिया, इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ नफरत तेजी से फैल रही है, और ये भारत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी इस्लामोफोबिया दिन मनाने की मुखालिफत की थी। मगर मुल्क में फाशिज्म खुलेआम फैल रहा है, जिसे कुचलने की जरूरत है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मुल्क की सालिमियत का सेक्रेटरी अजीत दाबोल ने नौजवान पुलिस वालों को खिताब करते हुए कहा कि आगे चलकर हमें सिविल सोसाइटी के अफराद से जंग करनी होगी। ये एक खतरनाक बयान है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की एक बेहतरीन सभा उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में हुई। उसमें रैली से, सभा से भाषण करते हुए उद्धव जी ठाकरे ने साफ तौर से कहा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, और उन्होंने खुलकर यह कहा कि अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ हमारी पार्टी बल्कि पूरा मुल्क उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को तब्दील करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ हम नहीं, हमारी पार्टी नहीं, बल्कि पूरा मुल्क बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मरकजी एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां बीजेपी की नौकर बन गई है। उन्होंने कहा कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद मेरी पार्टी के लोगों को हरासा करने वालों को सूद समेत हर्जाना अदा करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन बीजेपी आइन को तब्दील करने की कोशिश करेगी, पूरा मुल्क बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र करते हुए निशाना बनाया, जिसमें वजीर आजम ने कहा था कि पाकिस्तान का कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम बनाने के लिए पाकिस्तान बेचैन है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह बात हिंदुस्तान का वो लीडर कह रहा है जो पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के साथ
केक खाकर आया है। इससे पहले किसी ने पाकिस्तान जाकर केक नहीं खाया था। और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर हमारी हुकूमत इंडिया अलायंस की हुकूमत आती है तो फिर हम ज़राअत के लिए, शेतकरियों के लिए बीजों, फसलों को कीड़ों से बचाने की दवाएं और नीज, खेतीबाड़ी के औजार, साजो सामान पर से जीएसटी को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी के निजाम में इस्लाहात की जाएगी और टैक्स की दहशतगर्दी को रोका जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई कांग्रेस के लीडर विजय वडेट्टीवार का एक बड़ा बयान आया है जिससे पूरी रियासत में हंगामा मच गया है। उन्होंने खुलकर ही कहा कि हेमंत जी करकरे की मौत आरएसएस के समर्थक पुलिस अफसर की गोली से हुई थी। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि हेमंत करकरे को किसी दहशतगर्द ने नहीं मारा बल्कि आरएसएस ने मारा है, और आरएसएस का जो समर्थक पुलिस अफसर था उसकी गोली से हेमंत जी करकरे की मौत हुई है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उज्जवल निकम गद्दार है। उज्जवल निकम को उन्होंने गद्दार करार दिया। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन के लीडर कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार के एक बयान पर हंगामा मच गया है। उन्होंने दावा किया कि रियासत के साबिक एटीएस सरबराह आईपीएस अफसर हेमंत करकरे को 2008 के मुंबई हमलों के दौरान पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने नहीं मारा था। उन्होंने कहा कि जिस गोली ने आईपीएस हेमंत करकरे की जान ली वो कस्साब या दहशतगर्दों की बंदूक से नहीं निकली बल्कि वो गोली आरएसएस के लिए वक्फ एक पुलिस अफसर के हथियार से चलाई गई थी। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट